हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हाउ यू कैन सेलेक्ट अ पीएचडी गाइड वेदर इन इंडिया और इन अब्रॉड। सो यू वांट टू नो, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो। तो रिसेंटली एक मेरी वीडियो पे कमेंट आया था स्टूडेंट का। शी वांट्स टू नो दैट प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट हाउ यू कैन सेलेक्ट अ पीएचडी गाइड इफ़ यू वांट टू डू पीएचडी फ्रॉम इंडिया। सो इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू टिप्स which you can follow to select a PhD supervisor whether you want to do a PhD in India or in any other country in the world. So there are very few basic tips. Although there are some differences between tips if you want to do PhD from India and if you want to do PhD from abroad. So I'll be discussing first the tips which you can use for selecting a supervisor in India. So this is a myth. This is the biggest myth amongst the MSc student or a master's student, that you have to select your PhD supervisor based on his institute in which he is working and what is his qualification and how much grants he is having, and if his lab is rich enough to support your PhD studies or not. So these all points are important. I'm not saying that these points are not important, but most important point apart from these, and I would say this is the first point that you should keep in mind, and all the points just which I have mentioned just before come secondary after this point. First of all, if you want to do PhD from India, just check that if that PhD supervisor with whom you want to work is mentally, physically capable of guiding you. Because PhD, I'm not saying that your PhD supervisor will be writing your thesis and will be writing your manuscripts and will be conducting lab experiments on behalf of you. I'm not saying that, but most of the PhD supervisor in India, they are from older generation, so they just want bandhwa mazduri. So I have seen or I have heard a lot of stories from my friends that उनका पीएचडी सुपरवाइज़र उनसे ये काम करवाता है, उनसे इधर उधर के काम कराता रहता है, पीएचडी का कोई काम नहीं कराता है। स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर तो वो ऐसे ही चलता रहता है कि अभी रिसर्च ही चल रही है, कि आप पेपर ही पढ़ रहे हैं। सो आई वोंट रिकमेंड दैट। इफ़ यू वांट टू सीरियसली डू ए पीएचडी फ्रॉम इंडिया in any university, you can do your PhD in India from any university. That in PhD your university doesn't matter. In PhD your research, significance of research matters, and at the end of the PhD how many publications you have is what matters in India and in any other country as well. So PhD supervisor select करते टाइम पे you have to check कि वो mentally stable है and वो आपको परेशान तो नहीं करेगा, because unnecessary परेशान करना किसी गाइड का I would say your 4 to 5 years will become next to hell if that PhD supervisor is not, or you both are not in tune with each other. PhD supervisor कुछ और expect करता है आपसे, आप कुछ और expect करते हैं, तो your life will become hell. Keep that in mind. I'm not joking, and this is a serious issue while you are doing PhD in India. अगर आपका PhD supervisor आपकी बात नहीं मानता है, if he is single minded, if he consider himself as one man army, so उसके अंदर PhD करने का कोई मतलब नहीं है। वो आपको कुछ सिखाएगा भी नहीं और आपको परेशान और कर देगा 4 या 5 साल जितने भी आपको PhD में लगेंगे, और आपको उसकी चाटनी अलग से पड़ेगी। क्योंकि PhD सुपरवाइज़र जो ऐसे होते हैं, जो कुछ गाइड नहीं करते हैं, वो ऐसे होते हैं, उनको कोई काम नहीं कराना होता, उनको सिर्फ चाहिए होता है उनका जो PhD स्टूडेंट है वो सुबह आकर नमस्ते जी कर दे, शाम को जाने से पहले नमस्ते कर दे, और 1-2 बार पूछ ले कि सर क्या हाल है। उनको कोई रिसर्च नहीं करानी होती। तो पहला पॉइंट जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इंडिया से PhD करना चाहते हैं तो उस PhD सुपरवाइज़र के बारे में तसल्ली से ढूंढ लीजिए, उसकी कोई परेशानी तो नहीं है, उसको कि वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कि वो बच्चों को परेशान तो नहीं करता है। खासतौर से लड़कियों के केसेस में मैं बताता हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बाद में कंप्लेन करते हैं कि वो हम लोग को अननेसेसरी परेशान करते हैं, ये काम कर दो, वो काम कर दो, आप घर आ जाओ, आप प्रोजेक्ट डिस्कशन करने के लिए घर आ जाओ। तो मैं ख़ास तौर से उन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करना चाहूँगा कि
आपको पीएचडी करने से पहले ये मत देखिए आपके घर के पास है, या आपकी पीएचडी जल्दी हो जाएगी, या आपको पीएचडी में स्टाइपेंड मिल रहा है, या उस पीएचडी या उस सुपरवाइज़र का बहुत नाम है आपके शहर में। आप ये बिल्कुल मत देखिए। आप सबसे पहले देखिए कि इफ़ दैट पीएचडी सुपरवाइज़र विल नॉट टॉर्चर यू इन योर पीएचडी। मेरे साथ हुआ था, आई विल डिस्कस सम अदर टाइम दैट स्टोरी, because I have been doing PhD in India and I have left my PhD in US. So because of both the reasons I'll make some other video on that topic some other day, that मैंने US की PhD क्यों छोड़ी और मैंने फिर इंडिया में PhD ज्वाइन करी, फिर इंडिया में PhD करने के बाद फिर वही हुआ जो मेरे साथ US में हो रहा था। तो वो मैं किसी और वीडियो के लिए रखता हूँ। फिलहाल ये टिप्स में हम बात कर रहे हैं कि PhD सुपरवाइज़र कैसे सेलेक्ट करें। उसके बाद ये आपका हो गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद बाकी सारे पॉइंट आते हैं कि उसकी आप फंडिंग देखिए, उसकी लैब में फंडिंग है या नहीं है, वो उसके स्टूडेंट से बात कीजिए। स्टूडेंट से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे स्टूडेंट कभी भी आपका जो है अपने सुपरवाइज़र के बारे में किसी और के सामने बुराई नहीं करेगा, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि आप था ये मेरे गाइड को जाकर बोल दे। मुझे वो सभी स्टूडेंट के साथ है, उसमें उनकी भी गलती नहीं है, वो बेचारे फंसे हैं पहले से। अगर उनका PhD सुपरवाइज़र थोड़ा सा मेंटल है या थोड़ा सा ऑफ द हुक है, तो वो कभी भी अपने सुपरवाइज़र की बुराई किसी के सामने नहीं करेंगे, कि उनको डर लगता है कि क्या पता ये, मैं उसको जानता तो हूँ नहीं, क्या पता ये मेरे PhD सुपरवाइज़र का कोई भेजा हुआ हो ये कि ये पता करने के लिए कि मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो वो कभी स्टूडेंट से बात करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। डिपार्टमेंट में बात कीजिए, चपरासी से बात कीजिए, डिपार्टमेंट में, ऑफिस में बात कीजिए, क्योंकि ऑफिस वाले सब किसी के होते नहीं हैं, उनको सुपरवाइज़र से कोई मतलब नहीं होता, प्रोफेसर से कोई मतलब नहीं होता, उनसे पूछिए। या फिर आप जो है आप ये कर सकते हैं कि जो दूसरी फैकल्टी है उनसे बात करके देखिए जी वो कैसे प्रोफेसर है। मतलब मेरा मतलब है कि आप ये पता कीजिए कि उस प्रोफेसर की रेपुटेशन कैसी है PhD में, PhD कितनी जल्दी दे देता है। PhD में ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं कि उनको सनक हो जाती है कि भाई मैं साइंस में छापूंगा, मैं 10 इम्पैक्ट फैक्टर से भी नीचे पेपर ही नहीं छापूंगा। ये आपको नहीं चाहिए। देखो मेरा मतलब ये है कि अगर आपको 10 इम्पैक्ट फैक्टर का एक पेपर मिल रहा है आपकी पूरी PhD से, और वहीं दूसरा गाइड जो दे रहा है आपको 5 पेपर दे रहा है 2 इम्पैक्ट फैक्टर के, ठीक है, टोटल इम्पैक्ट फैक्टर 10 ही बैठ रहा है। लेकिन आप जब कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जब आप लिखेंगे वहाँ पर एक पेपर लिखेंगे वो 10 इम्पैक्ट फैक्टर है, और आपके CV में लिखेंगे 5 पेपर, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ता है कि देखो इसके इतने सारे पेपर हैं, इसका एक ही पेपर है। तो मैं ये भी देख लीजिए कि वो PhD सुपरवाइज़र ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे ही बात करता है कि भाई मैं तो 10 इम्पैक्ट फैक्टर का कोई पेपर होगा, क्वालिटी ऑफ रिसर्च आएगी तभी मैं छापूंगा, नहीं तो मैं छापूंगा ही नहीं छोटे मोटे इम्पैक्ट फैक्टर में, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रेपुटेशन हो गई इस गाइड की। उसके बाद फंडिंग देख लीजिए, उसके लिए में फंडिंग अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद आप देख लीजिए कि वो जो है बच्चों को कितना टाइम देता है अपनी रिसर्च से रिलेटेड। ऐसा भी बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे भी होते हैं, उनका नाम बहुत होता है, उनके लैब में फंडिंग बहुत होती है, बट वो अपने PhD स्टूडेंट्स को कोई टाइम नहीं देते। ये समझ लीजिए हफ्ते का 1 या 2 घंटा भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं। इसमें उनकी भी गलती नहीं है। कुछ सुपरवाइजर जनरली अच्छे होते हैं, लेकिन वो इतने बिजी रहते हैं कि उनके पास इतनी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटी में फंडिंग लाने की, या अपनी और जो ऑफिस के काम रहते हैं, वो जेन्युइनली टाइम नहीं दे पाते अपने स्टूडेंट्स को। तो ये जरूर चेक कर लीजिए अपने गाइड सेलेक्ट करने से पहले कि वो आपको अपने स्टूडेंट्स को टाइम देता है या नहीं देता है। क्योंकि PhD देखो, एक PhD एक BTech का कोर्स नहीं है या मास्टर्स का कोर्स नहीं है जिसमें आपको थ्योरेटिकल आपको पढ़ना है, लेक्चर होंगे, आप पढ़ लीजिए, आप एग्जाम दे दीजिए, पास हो जाइए। इसमें थ्योरेटिकल कुछ होता नहीं है PhD में, खासतौर से लाइफ साइंसेज की PhD में। मैं बाकी की जैसे आर्ट्स की होगी उनकी मैं बात नहीं कर सकता, उनके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट खासतौर से साइंसेज की जो PhD है या इंजीनियरिंग की जो PhD है, उसमें कोई भी आपका थ्योरेटिकल काम होता नहीं है, आपको लैब में काम करना है। तो PhD आप एक नई टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर आपका PhD सुपरवाइज़र और आप आपस में बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे कि आपको क्या प्लान ऑफ एक्शन क्या बनाना है, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो PhD किसी मतलब की है नहीं। बच्चा अगर आप कर पाता तो आपके अंडर PhD करने आता है, कि अगर स्टूडेंट में इतनी कैपेसिटी होती कि वो खुद ही सब कुछ कर लेगा, तो वो किसी सुपरवाइज़र के अंडर जाएगा कि वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसे जमा कराएगा, फीस देगा, घर से काम कर लेगा। तो PhD सुपरवाइज़र का अपना रोल जो है वो गाइडेंस देने का रोल है। मैं ये कभी नहीं कहता कि आपका PhD सुपरवाइज़र आपकी जगह लैब में एक्सपेरिमेंट लगाएगा, आपकी मैन्युस्क्रिप्ट लेगा, ये मैं कभी नहीं कहता। ये सारे काम स्टूडेंट के ही हैं। बट PhD सुपरवाइज़र का काम क्या है कि आपको राइट समय पे गाइडेंस देना, आपको लैब में फंड्स अवेलेबल करवाना, और आपको जो है मेंटल टॉर्चर ना करना। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं किसी भी गाइड को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं, अगर आपको PhD सुपरवाइज़र सेलेक्ट करना है US में, हाल तो जो है जो सिनेरियो है, आप किसी भी दूसरी कंट्री में जब हम अप्लाई करते हैं PhD एप्लीकेशंस के लिए, जब हम अप्लाई करते हैं PhD के लिए, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं देखते हैं।
मैं भी जब अप्लाई करता था तो मैं भी सिर्फ यही देखता था कि हाँ ये मेरे इंटरेस्ट का रिलेटेड का फील्ड है, और हाँ ये इंडिया में ये भी देख लीजिएगा कि आपका जो प्रोफेसर जो आपको सेलेक्ट कर रहे हो कम से कम आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का तो हो, और पीएचडी हमेशा उसी फील्ड में गई जिसमें आपको करने का इंटरेस्ट हो। जैसे मुझे हमेशा से कैंसर में करने का इंटरेस्ट था, तो मैंने अपना पीएचडी सुपरवाइज़र कैंसर में ही सेलेक्ट किया है। अब वो कैंसर में कुछ भी काम है आप उसमें काम चला लेंगे, बट क्योंकि आप इतना भी स्पेसिफिक नहीं हो सकते कि भाई मुझे तो कैंसर में एनजीएस पे ही काम करना है या कैंसर का मुझे यही काम करना है, वो तो इतना स्पेसिफिक हुआ नहीं जाता। एक ब्रॉड स्पेसिफिकेशन आप डिस्कस कर सकते हैं अपने गाइड से कि आप इस पे काम करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी अगर आप यूएस की बात करें या किसी दूसरी फॉरेन कंट्री की बात करें, तो जब हम लोग अप्लाई करते हैं, मैं भी ये अप्लाई करता था, हमारा मुद्दा क्या होता है कि हमें सिर्फ पीएचडी करनी है अब्रॉड से। स्पेशलाइजेशन हम लोग बाद में देखते हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं आपके पास वो अवेलेबल नहीं है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि बट रही है सब जगह पीएचडी दूसरी कंट्रीज़ में, तो वो वहाँ पर भी आपको कंपटीशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब लोग 100 प्रोफेसर्स को इकट्ठे मेल भेजते हैं कि मैं आपके काम में इंटरेस्टेड हूँ और आपको ऐसे मैं आपको अंडर पीएचडी करना चाहता हूँ, आपके पास फंड्स हैं तो आप मुझे ले लीजिए अपनी लैब में। तो मैं फिर से वही बात करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर भी आप सिर्फ ये बात डिस्कस देखिए कि आपको बस मिल जाए पीएचडी किसी तरह में। आप वहाँ भी पता करिए कि आपका प्रोफेसर वो कैसा है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं जैसे इंडिया में है, वहाँ ऐसा नहीं है। दूसरी कंट्रीज़ में वो भी इंसान ही है, वो कोई भगवान अवतरित नहीं हुए हैं, तो वो भी ऐसे ही हैं। कुछ बहुत अच्छे गाइड होते हैं, कुछ ऐसे भी गाइड होते हैं जो परेशान करते हैं वहाँ पे। और वहाँ का मेंटल टॉर्चर आप समझ लीजिए, जितना आपको इंडिया में मेंटल टॉर्चर होता है किसी पीएचडी में, वहाँ आपको 10 गुना हो जाएगा किसी दूसरी कंट्री में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो आपके भाई पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके 10 दोस्त हैं। बात कर लीजिए भाई, किसी को गाली दे दो, प्रोफेसर को, अपने गाइड को, अपने स्टूडेंट के साथ बैठ के, या अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठ के गाली दे लो। वहाँ आपके फ्रेंड्स ही नहीं होते, वहाँ कल्चर ही नहीं है फ्रेंडशिप का कि आपका पीएचडी स्टूडेंट, आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हो। वहाँ एक्चुअली टाइम नहीं होता, फ्रेंड्स तो होते हैं बट टाइम नहीं होता कि आप डिस्कस कर सको। तो आप किसी से बोल नहीं पाओगे, तो आपकी जो टॉर्चर है वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो ये चीज़ वहाँ भी चेक कर लीजिएगा कि उस प्रोफेसर की रेपुटेशन कैसी है। बाकी तो अगर वो आपको अपनी लैब में वो लेता तभी है जब उसके पास फंड्स अवेलेबल होते हैं। तो फंड्स तो चेक करने की ज़रूरत होती नहीं है। आपको कोई भी पीएचडी सुपरवाइज़र अपनी लैब में तभी लेता है जब उसके पास फंड्स अवेलेबल हैं आपकी पीएचडी रिसर्च सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी तो ये मुद्दे 2 मोटे मोटे पॉइंट थे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी करने के लिए। बाकी और तो कोई खास बात है नहीं याद रखने वाली इसमें कि आपको अगर बाहर से पीएचडी करनी है। बाकी उससे रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको जीआरई चाहिए होता है, वो तो सब इनिशियल फेजेस में होता है। प्रोफेसर आपको खुद ही बता देता है कि यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो चलो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में बात करूँगा कि आप लोग पीएचडी में, अगर आपको यूएस में जाना है पीएचडी में, तो आप कैसे जा सकते हैं, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसीजर, ठीक है। तो ओके, मैं आई एम एंडिंग दिस वीडियो नाउ।